یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ پروردگار عالم اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک وظیفہ بتلا رہے ہیں۔ آج کی اس پریشانی کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ ملے کہ میں اولاد کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ پتہ چلے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہو تو کسان بھائیوں کو پریشان نہ ہونا پڑے، پانی میسر ہو جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ پتہ چلے۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی پھل فروٹ نظر نہیں آتا، وافر مقدار میں آ جائے۔ ہر انسان ایسے وظیفے کی تلاش میں ہے کہ اگر کوئی وظیفہ مل جائے تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی وظیفہ مل جائے میں بیماریوں سے نجات پالوں، کوئی وظیفہ مل جائے میں گھریلو جھگڑوں سے نجات پالوں، کوئی وظیفہ مجھے میسر ہو کہ میں یہ جادو سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں۔ جادو ٹونے سے بچنا بہت ضروری ہے، تو ہر انسان ایسے وظیفے کی تلاش میں ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 سے 4 آیات مبارکہ کے اندر ہمیں وظیفہ بتلایا اور فرمایا کہ اس وظیفے کو کرو، اللہ تمام پریشانیاں ختم فرما دے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ صبح شام کے جو معمولات ہیں ان کے اندر استغفار اور درود شریف کو کثرت سے کیا کرو۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو، 100 دفعہ صبح استغفار، 100 دفعہ شام کو استغفار۔ اسی طرح درود شریف 100 دفعہ صبح پڑھا جائے، 100 دفعہ شام کو پڑھا جائے، انشاءاللہ مجھے یقین نہیں، مجھے پختہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمام پریشانیاں ختم فرما دے گا، صرف یہ استغفار اور درود پاک کی برکت سے۔ تو میرے دوستو، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ہمیں کلمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہ ملے اور اس وقت ہم استغفار کا سوچ رہے ہوں، اس وقت استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، وظیفہ قرآن میں موجود ہے، ہم کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے، کسی مولوی نے کوئی وظیفہ لکھ دیا ہو، اور تو ایک بڑی جہالت یہ کہ ہم نیٹ پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ نیٹ سے کوئی وظیفہ مل جائے۔ یوٹیوب کھولتے ہیں جی بچہ پیدا ہونے کے لیے کون سا وظیفہ استعمال کیا جائے۔ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے بھائی، یوٹیوب کھول لیا بھائی، بیٹے کی ولادت کے لیے، بیٹا پیدا ہو، بچہ ہو، نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ دو لکھ کے بھیجا۔ اور سینکڑوں جنہوں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، جنہوں نے کبھی سنت رسول چہرے پہ نہ سجائی ہو، جنہوں نے کبھی سنت کے مطابق لباس نہ پہنا ہو، وہ موٹیویشن بن کے نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کا وظیفہ یہ۔ بھائی سب سے بہترین قرآن ہے، اس قرآن کو کھولو، اس کو پڑھنا شروع کرو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اللہ نے ایک ایک چیز کی دوا اس قرآن میں رکھی ہے، ایک ایک چیز کی شفا اس قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میرا اللہ آسمان سے موسمی موسلا دھار بارشیں برسائے گا جو موسم کے مطابق ہوا کریں گی۔ ایسے ہی نہیں کہ اب بارشوں کی ضرورت نہیں اور بارشیں برس رہی ہیں، بارشیں تب ہوں گی جب ضرورت ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں گے، استغفار کریں گے، باقی سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم صبح نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے، کما رہے ہیں کما رہے ہیں کما رہے ہیں کما رہے ہیں، مہینے کے آخر میں پھر رونا ہے، پھر پریشان ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو، میں پروردگار تمہارے مال کے اندر بھی برکتیں کر دوں گا۔ مال کے اندر برکت، اور کیا چاہیے بھئی؟ 1000 روپے ہوں اور ان کے اندر اگر برکت ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ 1000 روپے میں آپ کے گھر میں فروٹ بھی آ جائے
आप घर में अपने बच्चों को उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशात भी पूरी कर दें, और क्या चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे माल के अंदर बरकत कर दूंगा, तुम्हारे माल के अंदर इतनी बरकत करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह ये फरमाते हैं। अच्छा, अगली चीज, माल की बरकत। हम सुबह से शाम तक निकलते हैं, वजीफा मैंने बता दिया। इस्तगफार करें, सुबह भी करें, शाम भी करें। हाथ में, मैं तो मेरे दोस्त आते रहते जो मुझसे पूछते हैं वजीफा, मैं उनको यही बताता हूँ भाई दुरूद शरीफ और इस्तगफार की कसरत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी परेशानियां दूर कर देंगे। अभी चंद दिन पहले एक मेरा भाई आया, मेरे पास बैठा, दफ्तर में भी बैठा रहा, दोस्त यहाँ करीब का है, आया वो मुझे, उसने काफ़ी सारी परेशानियां गिनवाई, मुझसे कहने लगा दुआ करो, मैं इस तरह परेशान हूँ, इस तरह परेशान हूँ। दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो हजरात मुझसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, बैठते रहते हैं, उनके लिए दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके लिए दुआ ना की। दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इन तमाम भाइयों को, मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दुआ मैं कर दूंगा। कहने लगा कोई वजीफा बताओ, मैंने वजीफा भी बता दिया। चंद दिन बाद फिर आ गया, कहने लगा जी कारी साहब मैं वजीफा कर रहा हूँ लेकिन परेशानी बढ़ गई है, मसाइल बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। मैंने कहा आपने हार नहीं मानी। कितने दिन हो गए? 4 दिन। मैंने कहा कुछ दिन और कर लो। 4-5 दिन बाद फिर आ गया, मैंने कहा क्या बना? कहता कारी साहब मसाइल हल हो गए, मसाइल हल हो गए। ये तजर्बे की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे तजर्बे की चीज है। इस्तगफार करके तो देखें भाई, सुबह करें, शाम करें, अपने परवरदिगार को सोने से पहले राजी करें, उठने के बाद राजी करें, फिर देखें इंशाअल्लाह बरकत हमारे आसपास फिर रही है, बस हम उनको पहचान नहीं रहे कि हम हासिल कैसे करें। अच्छा, माल की बात हुई, माल ऐसे बढ़ जाएगा, कमाना इंसान ने है, लेकिन अब हर वक्त उस कमाने के अंदर नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, ज़कात भी गई, हज भी गया, और जनाब उसी कमाने में कुरान की तिलावत छूट गई, उसी कमाने में इस्तगफार छूट गया, उसी रोज़ी को कमाने में हमने अपने बच्चों को वक़्त देना छोड़ दिया, उसी रोज़ी के कमाने में अपनी बीवी को वक़्त देना छोड़ दिया, उसी रोज़ी के कमाने में माँ बाप के कदम को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी दबा के नहीं देखा। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस्तगफार कर कर देखें। अगली बात, वयुमदिदकुम बिअमवाल व बनीन। आज हर इंसान वजीफे तलाश कर रहे हैं, मुझे औलाद हो जाए, मुझे औलाद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में वजीफा बता रहे हैं, फकुल्तु इस्तगफिरू, ऐ मेरे बंदो इस्तगफार करो, क्या होगा? वयुमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, मैं परवरदिगार तुम्हारे माल में भी बरकत करूंगा, तुम्हारी औलाद में भी बरकत करूंगा, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अच्छा, अब औलाद के मामले में एक बात और जिक्र कर दूं। कई भाई ऐसे होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, आपसे भी मिलते होंगे, ये बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनसे भी कहते होंगे कि बाबा जी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी 3 अता कर दी हैं, अब अल्लाह कोई बेटा भी दे दे। और कई तो ऐसे होते हैं, कहते हैं यार बस बेटे ही हो जाए, बेटी से ज़रा दूर रहते हैं, जबकि बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, 4 बेटियाँ, बेटी रहमत है, और हम बेटियों से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनकी बेटियाँ नहीं हैं उनको बेटियां इनायत करे, मुझ फकीर को भी अल्लाह कोई बेटी जैसी नेमत से नवाज दे। ये एक रहमत होती है, घर में आ जाए तो मैं कहता हूँ रोन के लग जाती है। बेटी एक ऐसी चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको इनायत करे। अब बात यह है कि बाज हजरात ऐसे होते हैं जो बेटी से जरा हिचकिचाते हैं, कर सब दुआ करें कि अल्लाह बेटा दे दे, बाबा जी दुआ करें कोई अल्लाह बेटा दे दे। और कुरान में अल्लाह पता क्या कहते हैं, वयुमदिदकुम बिअमवाल, मैं तुम्हारे माल में बरकत दूंगा, व बनीन, और तुम्हारे बेटों में बरकत दूंगा। कुरान में देखे अल्लाह वजीफा कैसे बता रहे हैं, वो बनीन, बनीन बेटों को कहा जाता है, मैं तुम्हारे बेटों में भी बरकत दूंगा, तुम्हें बेटे की नेमत से नवाजूंगा, तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजूंगा, वो औलाद भी बेटा होगी, बेटे की नेमत से नवाजूंगा। तो मेरे दोस्तों करना क्या है, वजीफा यही है कि इस्तगफार कर। वजीफा मैं बात करूं तो लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं इतना अर्ज करूं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी के साथ फरमाया, वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे बागात में बरकतें डाल देंगे। करना क्या है, इस्तगफार करना है। वयजअल लकुम अनहारा, आज हम परेशान हैं, हमारी नहरें खुश्क हो गई, हमारे पास पानी नहीं रहा। हम कभी कहते हैं वो फलाने मुल्क ने हमारा पानी बंद कर दिया, हम कभी कह रहे होते हैं जी हमारे दरिया खुश्क हो गए। वजह क्या है? हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे आमाल का नतीजा है। याद रखिए, हमारे गुनाहों का वबाल सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी कौम पर पड़ता होता है, पूरी कौम पर। वो एक वजह यह है कि हमने हदीस में पढ़ा था कि जब आदमी रोज़ा रखता है, जब आदमी नेकियां करता है, तो जो समुंदर की तह के अंदर मछलियां हैं वो भी उस शख्स के लिए दुआएं कर रही होती हैं। क्यों?
इसलिए कि जब ये नेकियां कर रहा होता है, इसकी नेकियों की वजह से जो रहमत बरसती है वो समुंदर की तह में मछलियों तक पहुंचती है, परिंदों के ऊपर वो रहमत पहुंचती है। इसकी नेकियों की वजह से जो अल्लाह की तरफ से बरकात का नुज़ूल होता है, इसके नेक अमाल की वजह से जो अल्लाह खुश होते हैं, उस वजह से जो रहमतें आती हैं वो परिंदों के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, हैवान के ऊपर, हत्ता के समुंदर की तह में मछलियों के ऊपर भी बरस रही होती है। जब रहमतें बरस रही होती हैं, क्या हमारे गुनाहों की नहूसत नहीं बरस रही होती? जो मछलियां हमारे लिए दुआ कर रही हैं वो क्या हमारे लिए बद्दुआ नहीं कर सकती? हदीस शरीफ में आता है। अब हम यहाँ पे, मैं एक मोटिवेशन है इंटरनेट पे, नाम उसका मुझे याद नहीं है, उसको सुन रहा था। वो कहता है जी, बात भी ठीक थी उसकी, कहते हैं कि अगर गुनाह मैं करूँगा, मेरे गुनाह की सज़ा इसको क्यों मिलेगी? बात तो ठीक, इसको क्यों मिलेगी, मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि जब आदमी, एक शख्स बेनमाजी नमाज को छोड़ता है, उसकी बेनमाजी नमाज को छोड़ने की वजह से 40 घरों के अंदर उसकी नहुसत फैलती है। क्यों? गुनाह तो इसी ने किया है, इसी के घर में पड़नी चाहिए थी, 40 घरों में फैलती है। यही वजह है कि जब हम गुनाहगारी की जिंदगी गुजारते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, तो हमारी वो नहुसत चरिंद परिंद यहाँ तक के समुंदर की तह में मछलियों के ऊपर भी फैल रही होती है। तो इसलिए हमें इस्तग़फ़ार कर कर सबका ख्याल रखना है, हमें नमाज पढ़कर सबका ख्याल रखना है। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तग़फ़ार की कसरत की वजह से तुम्हारे बागात फलों से भर देंगे। वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तग़फ़ार की वजह से तुम्हारे नहरों को पानी से भर देंगे। आज यही चाहिए।